Assalamu alaikum. Welcome back in the today's lecture. So we have almost completed the differentiation up till now. So now we are going to further study about the antiderivatives. So in this lecture, we are going to further focusing on the antiderivatives. So going towards the today's lecture, the definition of the antiderivatives, we know that the differentiation of any function can be taken from the different formulas, different according to the nature of the functions. So in this antiderivatives, we want to know about what was the actual function, whose differentiation has been taken, and it can be possible through the identification of that function with the help of antiderivatives techniques. So in today's lecture, we are going to further checking about the and some analysis of the different problems with respect to their derivatives and antiderivatives. So by definition, a function f of x is called an antiderivative of a function f of x. This is capital F of x and this is small f of x on a given interval if the f dash of x equal to f of x. It means the derivative of the function, original function, capital function is equal to the is same as the original function. For suppose we have given here an example f of x, capital F of x equal to 1 upon 3x cube. So the differentiation of that according to the differentiation of the given function can be written as this is the constant. So the differentiation of x cube equal to 3x square. So simply 3x square, this 3 is divided to each other. So the remaining function becomes x square. So it is the f of x. So it is the original function which having taken differentiation. So now we are going to further repeat this in Urdu. देखें हमने लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर्स तमाम पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें हमने अब तक जो है फंक्शंस, इनइक्वलिटीज, इंटरवल्स, लिमिट्स ऑफ कंटिन्यूटी और जो है तमाम कैलकुलस के टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम डिफरेंशिएशन पे मजीद जो है देख रहे हैं, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन बेसिकली वो भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है. अब उसकी एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कोई भी फंक्शन है हो उसकी अगर डिफरेंशिएशन हो चुकी है, ठीक है, और उसकी एंटी डिफरेंशिएशन लेकर हम उसको ओरिजिनल फंक्शन को किस तरह देख सकते हैं. देखें एंटी डेरिवेटिव बेसिकली क्या है. एक डेरिवेटिव होता है उसका एंटी, तो इसको इस टेक्निक को क्या कहेंगे, एंटी डेरिवेटिव. अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएटेड वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, उससे हम एंटी डेरिवेटिव निकाल के हम ये देख सकते हैं कि व्हाट वाज आवर ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव्स के आप इस तरह समझें, जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको आप एंटी डेरिवेटिव फंक्शन कहेंगे किसका, ओरिजिनल फंक्शन का, किसी भी एक फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का, किसी भी टाइम इंटरवल पे अगर वो डिफाइन है, ठीक है. तो वो एंटी डेरिवेशन जो है बेसिकली क्या शो करता है, आपका ओरिजिनल फंक्शन. सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब, ठीक है. ये एक फंक्शन है, इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है और उसको ओरिजिनल फंक्शन देखना है. तो हमने सिंपली एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन ली जो कि 3x स्क्वायर आई, 3 में आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास x स्क्वायर जो है वो आपका ओरिजिनल फंक्शन है, यानी f ऑफ x है, ठीक है. तो इसको मजीद हम समझने के लिए आगे जो चल के प्रॉब्लम करते हैं उसको उस सिलसिले में आपको मजीद जो है इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अच्छा, एक चीज़ चाहे ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स को मजीद हम एनालाइज करते हैं. आज मुख्तलिफ फार्मूलाज लिखते हैं और तमाम उसके एनालिसिस करते हैं. तो इंशाल्लाह ये आपके लिए जो है विथ रेस्पेक्ट टू देयर कोर्स कंटेंट्स, ये इम्पोर्टेंट जो है टेक्निक्स जो है वो इंशाल्लाह आपको हो जाएंगी. और इसमें आपका 80% जो है असाइनमेंट के हवाले से वो भी तमाम टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. So now we are going to further focusing on the integration formula. As according to your last chart of the differentiation,
you have to make all these formula in a chart, and you can chip that chart in your room so that you can see every formula and you can remember that formula. For working on the integration, we have to keep in mind some important formulas which are related to the integration. So let's check each formula one by one. Number one formula shows that this formula is about the integration of any constant number is x. Suppose here is 1, the integration of 1 is x, and here this plus sign plus c indicates that it is a constant of c, it is a c of constant, and this sign shows that it is the sign of integral. We can say that it is the sign of integral. So according to this formula, x power n, here power is n, you can see that the integration of x power n plus, it is the similarly like power rule. Power rule is n plus 1. We have to add in the power 1 and in the denominator divide by its power, adding 1. Then c is of constant. The integration of cos x is sin x, as the differentiation of sin x was cos x. Similarly here these are anti to each other. Anti differentiation or anti integration to each other. So cos x, the integration of cos x is sin x. The integration of sin x is minus cos x. The integration of secant square x is tangent x plus c. The integration of cosec square x dx is equal to minus cotec x plus c. The integration of secant x into tangent x equal to secant x plus c. The integration of cosec x cotec into cotangent x equal to minus cosec x plus c. The integration of e power x is similarly e power x plus c. C is of constant. So b power x, the integration of b power x is b power x upon divided by natural log into b. And where b is not greater than and equal to 1 or 0. B should be greater than 0 and not equal to 1. So the integration of 1 upon x equal to log mod of x plus c. The integration of 1 upon 1 plus x square is the tangent inverse x plus c. The differentiation of 1 upon square root of 1 minus x square is equal to the sine inverse of x plus c. The integration of 1 upon square root of x square minus 1 is equal to secant square secant inverse x plus c. So these are the formulas. So we have to check each, we have to apply each formula when it is required. Now we are going to further explain this in Urdu. देखें जी, हम इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूला पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो ये मेरी सजेशन है आपको, ये वाले फार्मूला और जो डिफरेंशिएशन के फार्मूला हमने तमाम जो फार्मूला लिखे हैं पढ़े हैं क्लास में, आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है. चार्ट बना के अपने रूम के सामने उसको जो है चिप कर दें, ठीक है. जहाँ पे आप ज़्यादातर जिस रूम में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उसके दरवाजे पे या जो है उसकी ऐसी दीवार पे आप जो है इसको चिप कर दें ताकि आपको देखते हुए आते हुए और जो है वो फार्मूला याद हो जाए, ठीक है. अब ये फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी मुख्तलिफ हमारे पास जो है जो एग्जांपल्स आएंगी, जो हमारे पास फंक्शंस होंगे उसमें इसकी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, ठीक है. तो अब ये फार्मूला क्या है, बेसिकली देखें. सबसे पहले नंबर को देखते हैं हम. तो फर्स्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ dx ये खाली नहीं है, इसके साथ 1 है. तो यानी कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, ठीक है, x प्लस सी. अब ये वाली साइन कहते हैं, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन साइन ऑफ सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. ये जो c है ये कांस्टेंट होता है, हर इंटीग्रेशन का रूल है. तो इसमें जो है प्लस सी, कांस्टेंट का c आता ही आता है, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसकी इंटीग्रेशन तो क्या होती है, x बन जाती है. तो कांस्टेंट तो नहीं आता, और एक्सप्रेशन में कांस्टेंट की एक वैल्यू होती है, एक अहमियत है उसकी, ठीक है. तो उस सिलसिले में ये प्लस सी होता है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू शो करता है, ठीक है. अच्छा, दूसरा है हमारे पास x पावर n. x हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, उसके ऊपर पावर क्या है, n है, ठीक है. तो n
पावर है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इंटीग्रेशन सिंपली जो पावर में 1 करेंगे ऐड, और जो पावर है उसको डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर में +1 करके। सिमिलरली यहाँ पे n+1 अपॉन x पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस c कांस्टेंट। अच्छा, cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी, -cos x। secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी tan x, cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी -cot x। अच्छा, इसके साथ प्लस c जो है वो कांस्टेंट है, secant x इंटू टेंजेंट x, इसकी क्या होगी secant x प्लस c। अच्छा, ये क्या है secant x इंटू cot x इक्वल टू, इसकी जो इंटीग्रेशन क्या होगी -cosec x प्लस c। अच्छा, e पावर x, इसकी इंटीग्रेशन होगी e पावर x प्लस c। अच्छा, tan है b पावर x dx, इसकी इंटीग्रेशन सिंपली ये होगी b के पावर ऊपर होगा x, और जितना भी है b जो भी है उसको हम डिवाइड कर दें log के साथ, यानी log b प्लस c प्लस ये, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन की। अच्छा, b क्या है आपका बेस है, कोई भी बेस गिवन होगा, ठीक है। 11वें में है 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log x प्लस c। अच्छा, इसमें क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसकी होगी टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। 13 में है 1/1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसकी है साइन इनवर्स x प्लस c। 14 में है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी होगी secant स्क्वायर x प्लस c। तो ये तमाम फॉर्मूलाज हैं, ये जो है इंटीग्रेशन है। अब आपने एक चीज यहाँ पे देखी होगी, जो भी फंक्शन था हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट हैं। अगर cos x की डिफरेंशिएशन देखना चाहें तो sin x आती है, sin x की इंटीग्रेशन देखना चाहे तो -cos x आती है। तो सेम अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के दोनों जो है एंटी डेरिवेटिव्स हैं। तो इसको मजीद हम अप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ जो है हमारे जो एप्लीकेशन आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इंटीग्रेशन की, तो वहां से हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट मजीद जो है क्लेरिफाई होता जाएगा इंटीग्रेशन के हवाले से। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटीग्रेशन के हवाले से, ठीक है। हमारे पास कोई भी ये एंटी डेरिवेटिव्स फंक्शन है, ठीक है, एफ और जी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये कोई भी है एंटी डेरिवेटिव्स हैं किसके, इसके एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के, ये दोनों स्मॉल में जो इंडिकेट किए गए हैं, ठीक है। और सी हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब कोई फंक्शन है उसके साथ सी मल्टीप्लाई है तो क्या बनेगा हमारे पास, यानी फंक्शन तो होगा, फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी, जो फॉर्मूला पढ़े थे, इंटीग्रेशन होने के बाद उसमें जो है सी मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, और जो है उसके साथ ये जो सी है ये कांस्टेंट का होगा, ठीक है। अगेन बता देता हूँ, जो हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी जो डेरिवेटिव है उसका एंटी डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, ठीक है, उसके साथ सेम तरीके से जो है सी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और जो है ये ऐड कर देंगे उसमें कांस्टेंट सी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, हमारे पास कोई भी दो डेरिवेटेड फंक्शन जो है आपस में ऐड हो रहे हो, सम हो रहा हो उनका, तो जो है सिमिलरली उसकी एंटी डेरिवेटिव्स लेंगे फंक्शन के, वो भी सम करेंगे, प्लस सी कांस्टेंट का दे देंगे, ठीक है। अगर आपस में वो डिफरेंस हो रहा हो, उसका सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, तो सिमिलरली उसका एंटी डेरिवेटिव लेके उसको जो है सब्ट्रैक्ट कराएंगे और उसके साथ प्लस का सी दे देंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कुछ जो है प्रॉपर्टीज ऑफ जो है ये इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। once again I'm going to repeat this. Suppose we have a derivated function f of x and g of x. These are the derivated functions, and we have to take the antiderivative functions like capital F of x and capital G of x. So if the derivative function is multiplied by a constant number, then we have to simply taken the antiderivative of that function, which is capital F of x, and then we are going to multiply that function with the same constant number.
So we after that it having the constant of c. This is a constant rule of the integration. So after that, if the derivative functions f of x and g of x both are adding to each other in any expression, what we have to do, we have to take individually antiderivatives of each function like f of x and g of x, then we have to add the plus c. This is the other property of the integration. And the third property is that if the derivative function f of x and g of x both are subtracting from each other, having the difference in the expression, so simply what we have to do after taking integration, similarly we have to take the integration individually of each function f of x and g of x, then we have to add a constant of c. So these are the properties of the indefinite integrals. So how these are applied, we are going to further checking these properties. ठीक है, अब इंटीग्रेशन के हवाले से कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो है मजीद क्लियर हो। हमारे पास एक जो है प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे पहले है हमारे पास 4 cos x, इंटीग्रेशन करनी है इसकी cos x dx, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है 4 cos x dx, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, 4 को अगर बाहर निकालना चाहें, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 4 sin x प्लस c, ठीक है। ये बेसिकली जो है 4 cos x की डिफरेंशिएशन है। एक दूसरा करके देखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी इस तरह, अच्छा x है, इसके ऊपर पावर क्या है 1 + 1, ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस साइन है, प्लस यानी x2 + 1/2 + 1, तो हमारे पास किस तरह बना, ये बना हमारे पास फंक्शन किस तरह आएगा x²/2 प्लस x³/3 प्लस c कांस्टेंट, ये इसकी इंटीग्रेशन रही, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन है 3x⁻6 minus 2x² plus 7x plus 1, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे हम, इसको इस तरह, इसकी इंटीग्रेशन इस तरह भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम मजीद इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी क्या होगी 3 × x⁻6 + 1/6 + 1, ठीक है, माइनस 2 × x² + 1/2 + 1, ठीक है। इसको हम मजीद इस तरह करना चाहें 7 × x1 + 1 1 + 1 प्लस x प्लस c, इंटीग्रेशन आई, इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये क्या बनेगा 3 × x⁻7/7 minus 2 × x³/3 plus 7 × x²/2 plus x plus c। अगर मजीद लिखना चाहें तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3/7 x⁻7
-2/3x³ प्लस 7x² प्लस x प्लस c। ये सिंपली इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मजीद कर लेते हैं ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम। एक चौथा करके देखते हैं। cos x अपॉन sin x। इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी देखें। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x मल्टीप्लाई बाय 1/sin x, क्योंकि sin स्क्वायर x है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos अपॉन sin किसके बराबर होता है? ये बनेगा आपका जो है cosec अपॉन sin, ये होता है आपका cosec x, और ये होता है आपका cot x, ठीक है। मजीद लिख देता हूं आपको, फिर से लिखिएगा। ये sin थीटा अपॉन cos sin अपॉन cos टेंजेंट ये होता है, और cos अपॉन sin cot टेंजेंट ये होगा। तो ये मैं अगेन लिखता हूं, ये बनेगा कोटेंजेंट x मल्टीप्लाई बाय, अच्छा sin x किसका है? sin x का इनवर्स क्या है? यानी ये 1/sin x किसके बराबर होता है? ये होता है cosec x, cosec x बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन cot x मल्टीप्लाई बाय cosec x ये होती है माइनस cosec x प्लस c, ठीक है। एक बार तो आप फिर से पूरे बोर्ड को डिफाइन कर देते हैं। पहले किया हमने 4 cos x dx, 4 कांस्टेंट रखा, cos x की हमने इंटीग्रेशन की, cos x की इंटीग्रेशन क्या आई? sin x आई, इसको मल्टीप्लाई किया 4 sin x प्लस c, ठीक है। उसके बाद हमने किया x प्लस x² dx, x की इंटीग्रेशन ली, उसके बाद x² की इंटीग्रेशन ली। तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह लेते हैं? इसके ऊपर 1 था, 1 में 1 ऐड किया, इसके ऊपर 2 था, 2 में 1 ऐड किया, डिवाइड बाय उतनी पावर से कर दिया। तो ये आपका x² प्लस x³ प्लस c, ये आपका जो है आंसर आ गया। एक इंटीग्रेशन ये थी हमारे पास 3x⁻6 माइनस 2x² प्लस 7x प्लस 1। देखिए 3 पावर में 1 ऐड हुआ, माइनस 2 पावर में 1 ऐड हुआ, प्लस 7 पावर में 1 ऐड हुआ, प्लस 1 इसका x बना, उसके बाद कांस्टेंट c। तो ये सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास 3/7x⁻7 माइनस 2/3x³ प्लस 7/2x² प्लस x प्लस c, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आई। चौथा किया हमने cos x अपॉन sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x है, इसको किस तरह लिखा है हमने? cos x अपॉन sin x मल्टीप्लाई बाय 1/sin x, ठीक है। यानी इसको खोल के रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास sin अपॉन cos होता है टेंजेंट के, और cos अपॉन sin बनेगा कोटेंजेंट के, बनेगा कोटेंजेंट आ गया। cosec 1/sin x किसके बराबर होता है? cosec x। तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? माइनस cos x प्लस c, हमने पिछले फॉर्मूला में देखा हुआ है, ठीक है। वैसे चलते हैं आगे। अच्छा नंबर 5 में हमारे पास है x² अपॉन x² प्लस 1।
अब इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे, देखें इसमें भी कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। तो टेक्निक्स हम कौन सी अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसमें +1 भी कर दें -1 भी कर दें, क्योंकि ये जो है डिवाइड जो है इसके न्यूमरेटर में भी है कुछ, और ये जो है आसानी से ये जो है इंटीग्रेट नहीं होगा। तो इसके लिए टेक्निक्स कौन सी अप्लाई कर रहे हैं हम, +1 कर दें -1 कर दें, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने कुछ इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी टेक्निक अप्लाई की है, x² + 1, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए x² + 1 x/x² + 1, यहाँ पे भी है x² + 1, ठीक है। तो अगेन देखिएगा x² + 1 x² + 1 माइनस dx -1/x² + 1, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये दोनों आपस में सेम है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये बचा आपके पास 1 की डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका, सॉरी माइनस है, माइनस dx/x² + 1, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन अलग से करनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे है 1/x² + 1 dx, ठीक है। इस तरह से बन रहा है कुछ, देखिए ये -1, ये x² + 1, ये 1 का 1 हो गया, डिवाइड हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, ये देखें आपको फार्मूला को देखिएगा, इसकी डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या निकल रही है, जो पिछले हमने फार्मूला किए हैं। इसकी इंटीग्रेशन होगी x, ये होगा टेंजेंट इनवर्स x dx। तो इसकी डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह आती है, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं 6 का है। इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। dy/dx और y की वैल्यू क्या है 0 पे, इनिशियल पे 1 है वो, ठीक है। तो ये हम जो है मजीद इसको, अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सब्जेक्ट आप 3rd सेमेस्टर में आई थिंक पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, इसको सिंपली हमने जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, फंक्शन है हमारे पास, ये है cos x, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy = cos x dx, ठीक है। dy cos x, इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड करें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, cos की इंटीग्रेशन होती है sin + c कांस्टेंट होगा, तो हमारे पास ये आ गया y = sin + c, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन है y(0 = 1), यानी sin 0 किसके बराबर होता है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो sin 0 जो है 0 पे ही होता है, तो हम इसको कहते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं,
यानी कांस्टेंट ही होगा सिंपली, ठीक है। तो इसको हम जो है सॉरी यानी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई हमारे पास, c इक्वल टू 1, ठीक है। इस वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इसमें रखेंगे जो हमारे पास आ गया था। तो ये हमारे पास इस तरह भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1। बेसिकली ये है हमारे पास आंसर। एक बार तो आप ऐसे डिफाइन कर देता हूँ इसको। हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1। इसको सिंपली इस फॉर्मेट में था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos x dx बन गया। इसको तो बोथ साइड इंटीग्रेशन किया dy और cos x को, तो इसकी इंटीग्रेशन ये आएगी, ठीक है। ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। इसकी वैल्यूज रखी, ठीक है। y ऑफ 0 पे जो है वो वैल्यू क्या है, 1 है। साइन x को रखा तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास, c इज इक्वल टू 1। इस c को हमने ओरिजिनल इसी वाले एक्सप्रेशन में रखा तो ये हमारे पास इस तरह कुछ वैल्यू बन गई। इसको मैं एक मतलब फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन करना नॉर्मल तरीके से बहुत टफ है, तो इसके लिए हमने क्या किया, ये आम तरह से इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक प्लस 1 भी ऐड कर दिया, माइनस 1 भी ऐड कर दिया एक्स। तो इसको जो है मजीद सिंप्लीफाई किया, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है आपस में, तो ये बचा है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी एक्स की होगी, इसकी कांस्टेंट की होगी एक्स। ये हमारे पास फार्मूला में देखा था पिछले फार्मूला में, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो ये हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आ गई। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे हम, सिंपली वही वाली तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम। सो हमारे पास जो है एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2 की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस 7 अपॉन 5 dx। तो ये किस तरह होगी इसकी इंटीग्रेशन, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 1। तो ये हमारे पास किस तरह बनेगी, देखें 2 मल्टीप्लाई होगा इससे, माइनस 1 अपॉन 2 वो बन जाएगा एक्स पावर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय ये बनेगा 5 एक, और जो है ये जो है 5 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन 5। ठीक है, ये कुछ इस तरह बनेगा माइनस 3। इसको मजीद हम जो है 12 बनेगा, माइनस 12 बनेगा। सॉरी ये प्लस का है,
ये बनेगा 12/5, ठीक है। तो इसको मजीद अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये -2, सॉरी यहाँ से देखें, ये हमारे पास क्या बन रहा है, x पावर -1/2 -1/2 -3 इंटू x पावर 12/5, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट जो है इसको अगर लिखना चाहें तो ये कुछ जो है ये -2 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये -2 बन जाएगा, और ये जो है -1/2 है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ x बन जाएगा, ठीक है। और अगर इस टर्म की बात करें तो हमारे पास देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ठीक है। तो इसको मजीद अगर लिखना चाहें, इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, ये होगा इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अच्छा, इसको हम अगर मजीद डिवाइड करना चाहें तो इस पे 3 का टेबल 4 टाइम्स होगा, इस पे 5 टाइम्स होगा, ठीक है। ये होगा +3x आखिर में, ठीक है। तो इसको हम मजीद इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। एक बार तो फिर से रिपीट कर देता हूँ। फंक्शन है हमारे पास x पावर -1/2 -3x पावर 7/5। इसको इंडिविजुअली लिखा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसकी, ये इंटीग्रेशन किए, ऐड किया है +1 दोनों में, ठीक है। इसकी कांस्टेंट जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद इसके रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आ गए इसके, सेम लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक। आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। एक 8वां करके देखते हैं। एक फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इसकी। अच्छा, ये है विथ रेस्पेक्ट टू 5, यानी विथ रेस्पेक्ट टू x नहीं है, विथ रेस्पेक्ट टू d5 है। तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह कर रहे हैं हम, देखिएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 5² 2, इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, क्या होगी, प्लस ये किसके बराबर आ रहा है, 1/sin प्लस मल्टीप्लाई बाय यानी cosec अपॉन sin 5। एनी आइडिया? ये होता है माइनस कोटेक के बराबर, माइनस कॉट 5 के बराबर होगा, क्योंकि 1/sin फार्मूला को देख लीजिएगा और उसमें कुछ टेक्निक्स अप्लाई की हैं, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन कुछ ऐसी आएगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5² 2 - 2 cot 5 + c। इसकी इंटीग्रेशन इस तरह होगी। अगेन रिपीट कर देता हूं, हमारा फंक्शन मिला था 5 + 2/sin² 5, इसको हमने इस तरह लिखा +2, इसको मजीद एक्सपेंड कर दिया, ये बन गया cosec x के, ठीक है, sin 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम जो है मजीद जो है ये बन रहा है cosec x अपॉन sin x, तो ये आपस में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, -cot 5 अकॉर्डिंग टू हमने जो लास्ट फार्मूलास देखे हैं उसको भी देखिएगा, और इसकी जो कुछ ट्रिक्स अप्लाई की हैं इसमें वो भी चेक कीजिएगा। dx, तो इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन आएगी ये होगा 1/2, ये किसके बराबर है, sin इनवर्स x, ठीक है, और ये किसके बराबर है, -3 1/1 + x², ये होता है tan इनवर्स x के। आप देखते जा रहे हो, सिर्फ फार्मूला पुट करना है, ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है, उसके बाद सिंप्लीफाई करके उसको जो है सिंपल फार्मूला पुट करना है और जो है वैल्यूज हमारे पास आती जा रही हैं, ठीक है। तो अब ये इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह आएगी, 1/2 sin इनवर्स x - 3 tan इनवर्स x + c, ठीक है। अच्छा, 10वां है हमारे पास, तो प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है, इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, सेम तरीके से जिस तरह पहले किए थे, तो इसको हम मजीद सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अगर एक ही बात करना चाहें,
ए में हमारे पास क्या है, ए में क्या है, dy by dx इक्वल टू ई पावर x, और y ऑफ 0 क्या है हमारे पास, y ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू है 1। तो हमने सिंपली क्या किया, dy by dx क्रॉस मल्टीप्लाई करें इक्वल टू ई पावर x dx, इंटीग्रेशन बोथ अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर x इंटू dx। तो इसको मजीद इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, ये बनेगा y इक्वल टू ई पावर x प्लस सी। ठीक है, अब y ऑफ 0 क्या है हमारे पास, ई पावर 0 प्लस सी। तो y ऑफ 0 हमारे के पास किसके बराबर है, 1 इक्वल टू 1 प्लस सी। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, c इक्वल टू 0, c की वैल्यू 0 आ गई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल फंक्शन बनेगा, ये वाला फंक्शन किस तरह बनेगा, y इक्वल टू ई पावर x। ठीक है, दूसरा करके देखते हैं, बी प्रॉब्लम में है, सैम है, इसको मजीद अगेन समझिएगा। बी में है हमारे पास, ब्लैक से लेते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी वाई इक्वल टू, सॉरी ये वाला पॉइंट टी है, डी टी होगा, डी वाई बाई डी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 डी टी अपॉन टी। इसको इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह आएगी, y इक्वल टू 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन क्या आती है, log t आएगी। ठीक है, 1 अपॉन टी की इंटीग्रेशन आएगी log t प्लस सी। ठीक है, तो अब t की वैल्यू क्या है एट y ऑफ 0 इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। इंटीग्रेशन के बाद हमने इस पे इनिशियल वैल्यूज अप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, y माइनस 1 पे है उसके पास 5, तो ये हमारे पास की क्या बनेगी, लॉग इसको हम इस तरह करके देखें तो y ऑफ 0 ये इस तरह करके देखें तो यहाँ पे क्या आती है, 5 आती है। log माइनस 1 यानी log प्लस 1, log 1 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो c की वैल्यू क्या आई, 5। अब इसमें इंसर्ट करें तो हमारे पास फंक्शन किस तरह बनेगा, एक बार तो फिर से देखिएगा, हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है dy अपॉन डी टी इक्वल टू 1 अपॉन टी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये कुछ इस तरह बना, इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड ली तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह बना। ठीक है,
अब हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या थी, कंडीशन ये है हमारे पास -1 पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है 5, तो y -1 पे क्या है log -1 प्लस c, मॉड्यूलस के अंदर है, ये मॉड है, मॉड के अंदर कोई भी चीज हो वो हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। और log 1 पे क्या होता है, उसकी वैल्यू 0 है, log 1 पे वैल्यू 0 होती है, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 आई, तो 5 इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन इस तरह कुछ बनेगा। इसको देखिएगा, अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास e पावर x है, गिवन है, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो ये इस तरह बन गया, इसकी इंटीग्रेशन बोथ साइड ली तो ये कुछ इस तरह आ गया, तो हमारे पास फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा बन गया। इनिशियल कंडीशन क्या है, y ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, e पावर 0 प्लस c, तो ये 1 वैल्यू क्या है, कहाँ से आई, यहाँ से आई, 1 प्लस e पावर 0 1 के बराबर होगा प्लस c, ये तो c की वैल्यू क्या है 0 आई, तो फंक्शन किस तरह बना हमारा, इस तरह बना, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, नॉर्मल है, आसान है, ठीक है, आ जाएंगे आपको। अच्छा 11वां करके देखते हैं। इसकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, इसकी इंटीग्रेशन ऐसी होगी, x प्लस एक्स क्यूब dx, सिंपल है, नॉर्मल है। इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस x 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस c, तो ये हमारे पास किस तरह बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई इसकी। एक और करके देखते हैं, और y हमारे पास इंटीग्रेशन है 2 प्लस वाई होल स्क्वायर की, होल स्क्वायर dy विथ रेस्पेक्ट टू y है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन किस तरह हम फाइंड कर रहे हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह बनेगा, ये बनेगा 4 प्लस 8y स्क्वायर प्लस y पावर 4 इंटू dy। इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन इसकी ले लें तो 4 की विथ रेस्पेक्ट टू y प्लस 8 की विथ रेस्पेक्ट टू y स्क्वायर अपॉन dy प्लस y पावर 4 की, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी 4y प्लस 8y क्यूब अपॉन 3 प्लस y पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, तो इसकी इंटीग्रेशन कुछ इस तरह आएगी। इसको आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आसान है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दूसरे प्रॉब्लम करते हैं।
ये प्रॉब्लम है, इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं ये देखिएगा। इसको रब किया जा रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y पावर -3/4, ये पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस चली जाएगी, माइनस y इसके ऊपर क्या आ गया -1/3, यानी y पावर 1/3 आ गया। ये इंडेक्स है, सॉरी 3/2 है ये। इसको 3/2 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, और जो है ये 1/2 के बराबर होता है, और इसके अंदर जो है 1/2 और मल्टीप्लाई में क्या है 3 है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -4 × y पावर -1/2। आसान है, ठीक है, इनकी डिफ्रेंसिएशन करनी है। अब सिंपल इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया, डायरेक्ट इनवर्ट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, इसके साथ tan है, यहाँ पे ऊपर tan है, तो ये tan मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं। अब tan रखा बाहर, y के ऊपर -3/4 + 1/-3/4 + 1, ठीक है, माइनस y के ऊपर है 3/2 + 1 3/2 + 1 -4 y के ऊपर है 1/2 + 1, सॉरी -1/2 है, अपॉन -1/2 + 1। देखिएगा ये किस तरह बन रहे हैं, 10 3 4 -4/2 यानी -1/4, ये सॉरी ये बनेगी हमारे पास 4 प्लस और माइनस, यानी बनेगा 1/4 अपॉन 1/4, ठीक है, माइनस ये बनेगी हमारे पास 2 + 5 5/2 अपॉन 5/2 -4 मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 -1/2 बन जाएंगे। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं 40 y 1/4 -2/5 y पावर 5/2 -8 y 1/2। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 40 y/4 -2/5 y पावर 5/2 -8√2। अच्छा सॉरी, प्लस सी आखिर में है। सिंप्लीफिकेशन है, इजी है, ठीक है। एक बार तो फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। फंक्शन है हमारे पास tan y/3/4 -3 √y -4/y, ठीक है। इसको हमने ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -3/4 बन गया, ये 3/2 के क्या इसको लिख सकते हैं हम, और ये जो है -1/2 अगर ऊपर चला गया तो ठीक है।
सिंपली इंटीग्रेशन की है, यहाँ पे इनकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास कुछ वैल्यू ऐसे आई। इसको हम सिंपली ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 40y पावर 1/4 माइनस 2/5 ये बनेगी। और ये सिंपल आपकी आसान है, इसको इजी है, आप ट्राई करके देखिएगा। एक एक टर्म इंशाल्लाह जो है इसमें दुश्वारी नहीं होगी। एक और करके देखते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ठीक है। एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1, यानी वाई ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये है हमारे पास सिंपली जो है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 1/2 यानी 3/2 बनेगा ये, ठीक है। इसकी पावर 3/2 बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखें बेस सेम है तो पावर इसकी ऐड होती है, ठीक है। तो बेस सेम है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स पावर 2 + 1 2/3। तो ये हमारे पास कुछ बनेगी 5 + 2 तो 7/3 एक्स पावर 5/3, सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन बना dy/dx इक्वल टू एक्स पावर 5/3। इसकी इंटीग्रेशन करना आसान है, ठीक है। तो हम सिंपली वही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे हम। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन करते हैं इसकी, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं dy/dx dy इक्वल टू एक्स पावर 7/3 dx, ठीक है। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे।
ये आ रही है हमारे पास कंडीशंस, ठीक है। अच्छा, ये एक आखिरी प्रॉब्लम है आज का, ठीक है। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है हमें सॉल्व करना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। x² 2 यानी ये हमारे पास स्टेटमेंट ये है, ठीक है। स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे क्या गया है कि ये जो है x² जो है x³, इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। इसको मजीद अगर बेस सेम है तो हमारे पास पावर इसकी ऐड होती है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बना, ठीक है। इसको हम मजीद इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड, तो हमारे पास ये कुछ बना, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड, ये इंटीग्रेशन हमारे पास ऐसी आई। इसके बाद हमारे पास y कुछ बन रहा है ये। अब इनिशियल वैल्यू क्या है, y(0) पे हमारे पास क्या है, 0 पे है 0, तो ये हम y(0) रख रहे हैं। c की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू 0 आ गई, तो हमने इस एक्सप्रेशन में रखी, तो हमारे पास y किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो इजी है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको तमाम जो है चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहाँ पे आप इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो आज प्रॉब्लम किए हैं, प्रैक्टिस करने के बाद अगर जो क्यूरीज होंगी आपकी, इंशाल्लाह वो लाइव क्लास में हम हल करेंगे। तो आसान है, ठीक है, इसकी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको आ जाएंगे इसके तमाम प्रॉब्लम। ओके, अल्लाह हाफिज तब तक के लिए।